I rise to second the motion of thanks to the President's address as proposed by my colleague, Ms. Meenakshi Lekhi. So I would like to start by thanking the people of India who created history in 2014 by voting in a majority government after a long period of almost 3 decades, and that too giving us a leadership of a Prime Minister who has personally faced the hardship of being born in a poor family and has had to face the challenges throughout what today probably in our country millions of people and poor people are facing today. And I think the fact that despite all odds, despite all challenges, by the sheer strength of his hard work, his dedication, his commitment, he has risen to the post of leading this entire nation to the future. I think the credit goes to the people of India to have recognized his true value and his true strength. Madam, we have a leader today who for the last 20 months has probably worked more than 18 hours every day without a break. I don't think there is anybody else in this house who can take credit of that we can work 18 hours a day for 20 months at a stretch without a break. And I think this single-minded dedication, focus of his to transform the way our country is perceived in the world, to transform the way a country delivers to its people, and most importantly, transform the way that this country has been working till now, goes to the credit of this Prime Minister. It makes me proud to say that today our leader is a leader who has a vision based on experience. He has the perseverance and the dedication to continue to work towards his goals despite all odds and despite all the hurdles and all the roadblocks being created. And I think for the development of this nation, it is probably historic that where one individual is working day and night for the progress of the country, probably for the first time in history a new government has come into power, and out of the 6 sessions of parliament which has taken place under a new government, or more than 3 have been a washout due to the disruptive politics of the people I will not mention, but the entire world knows who's in the well of the house and who's sitting in their seats trying to conduct some business. Which party you know and the country knows, I will not go into that. After 10 long years of a sluggish, stagnant economy reeling under policy paralysis, corruption, scam after scam, long years of this, where the entire world had given up on this country, I am proud to say that in 20 months, this has been changed around. And I think the credit of this goes yet again to the leader who has traveled all across the globe to increase the confidence of the world in this country. And I think that is the reason that his hard work overseas and within the country. Look at the landmarks that we have achieved in 20 months, sir. We still have 3.5 years to go. And I would say just look at that in short 20 months. Today, India has overtaken the superpowers like China, US, UK, Germany, Japan, and has become the fastest growing economy in the world. Inflation is under control. Current account deficit is being brought under control. The fine balance between growth requirement of the nation and the fiscal deficit discipline being followed by our Prime Minister and our Finance Minister is being lauded by economists all over the world. Our GDP grew by 7.1% in the last quarter of 2015-16. Our manufacturing growth is 12.6% in the last third quarter. World over, there is a renewed confidence in the way the world is looking at this country, and that's why in the FDI, I'm coming to that. Wait, let me finish. I will cover every topic because we have got so much that we have done, you can't even match it. No, please, running commentary मत करो और आपका भी बारी आएगा ना. क्षमता नहीं है.
यही कारण है कि जब हम अपनी उपलब्धियां बोलेंगे ये शोर मचाएंगे, ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि लोगों ने उठा के इन्हें बाहर फेंक दिया और यहाँ एक प्रधानमंत्री को लेके आए हैं जो अपने काम करने में लगे हुए हैं। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जहाँ सारे दुनिया में इतना ग्लोबल मेल्टडाउन चल रहा है, इतना ग्लोबल ग्लूम है, आज अकेले हिंदुस्तान एक देश है जहां पिछले 20 महीनों में देयर हैज बीन अ 39% इंक्रीज ऑफ एफडीआई, द हाईएस्ट एवर इन दिस कंट्री। ये आप भी कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, हमने 20 महीनों में कर दिया। हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो इन लास्ट 20 months has been in this country an increase of 39% despite global gloom. Foreign exchange reserves have increased under the dynamic leadership of our visionary Prime Minister. If you look at the various benchmarks where world economists, like I said, I'm quoting what is printed in the world platform. No, I have not tweaked it. Let me tell you what it is. Due to the visionary changes of the government in his policies, example is ease of doing business, where there is transparent systems are being followed, old and unnecessary laws are being made easier, they are being repealed, many hundred laws have been repealed, obsolete laws, transparent and corruption-free environment, a stable and predictable tax regime. All these things in the last 20 months, the changes which have taken place have led to, sir, a jump of 16 positions in global competitive by World Economic Forum, not me. Up 12 ranks in the ease of doing business by World Bank, not me, World Bank is saying. FDI destination, top FDI destination as per US Foreign Policy magazine, not us. From an era of scams and corruption, India now ranks second in the World Trust in National Government Survey. The trust confidence, which used to be 73%, has now come up to 55%, making us the second in the world. Unprecedented growth of 32% in national brand value, up 13 points in the ranking in travel and tourism index. All these rankings in a short span of 20 months go to show something, whether you admit it or you don't. The facts and the figures speak for themselves, and I suggest you start digesting that. Madam, I'm glad you're happy. Good, good. Sir, not only did the Honorable Prime Minister, I was supposed to speak in the morning, so that's why. Sir, not only did the Honorable Prime Minister travel across the globe to build the confidence of international community and the rest of the world towards us, but I must say that even within the country, if you look in this short time, the kind of landmark decisions that have been taken clearly bear his decisive stance and his intention to reach the last man in the line in every way. First of all, in the true spirit of collective federalism, for the first time, the government decided to transfer additional funds to the states from 32% to 42%, which no government did till now. Our Prime Minister decided to do it. Why not? He's done it. Who else did it? No, please address the chair, madam. Please don't disturb. Sir, बोलिए. So additional funds to the state has been something that our Prime Minister, instead of holding everything which an earlier government used to do, one thumb rule applies to everyone. Here we have opened our hands and given it to the states and let them decide what they want to do with their funds. Sir, transparency and honesty is the hallmark of this government. I'm happy to say that in a corruption-ridden, scam-ridden past that we inherited, today this government in its 20 months has worked to ensure transparency and honesty. Scams and corruption, crony capitalism. बैठे बात करने, please don't talk like that. अच्छा बताइए, भ्रष्टाचार की मैं बात करती हूँ. आपके टाइम में जब ऑक्शंस होते थे, अरबों करोड़ों पैसे कहाँ जाता था, देश जानता है. No, don't. आज हमारी coal allocation. No, don't interrupt. No, sorry, please don't interrupt. You will have your chance. No, why you are interrupt? No, please. Nothing will go on record. आप कृपया बैठ जाइए. You can no, please. सर सुना नहीं जा रहा है. लूट. बोरिया जी, please sit down. ना आप बैठिए ना, आपका बारी आ जाएगा ना.
नहीं, when your turn comes, you can reply, no? सर, जिनको कई सदियों से लूटने की आदत थी, अब 20 महीनों से लूटने को नहीं मिल रहा है, तो फिर पेट में तो अब दर्द होगा ना इनको, पर इनके पेट का दर्द का इलाज तो हमारे पास नहीं है। सर, जहाँ पे अच्छा लूट लिया तो यहाँ दूसरी बारी नहीं, बैठे बैठे बात करने का ठीक नहीं है। No, please. ये जो लुटेरे लूटने वालों की बात करते हैं, जो खुद लूट के कहाँ देश को कहाँ ले गए हैं, आज मैं कहना चाहूंगी कि जो पैसा ये लूटते थे, मुझे मान है कि हमारी सरकार उन्हीं चीजों की ऑक्शन से आज खजाने में पैसा भर रही है। ये मैं कोल ऑक्शन की बात करूं। No, please. No, 1 second, madam. No, there should not be any running commentary. You will have your turn. Please, no, you can reply. No, you have all chance. You have all fair chances to reply. You please address the chair, madam. Please, sir, I am only addressing you. सब बिल्कुल एक और देखिए, हाँ, वो अच्छा खबर सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, इसलिए स्पीकर को No, but continuous interruption, running commentary is not good. You are a senior member, you know that. Please to go to your party, please. Don't change party in the house. Also, sitting in wrong seat is not part of parliamentary procedure. So, सर, मैं आज देश को बताना चाहूंगी कि जो लुटेरों की सरकार होती थी और लूट के खजाने के पैसा पता नहीं कहाँ जाता था, आज मुझे मान है कि 20 महीनों के अंदर जो कोल की ऑक्शन हुई तो 3.3 लाख करोड़ आज कोल ऑक्शन में देश के खजाने में भरा गया है। वो पहले कहाँ जाता? नहीं, आप बैठिए, कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन। जानना चाहता है सर, जब स्पेक्ट्रम की बात होती है तो जो स्पेक्ट्रम में जो घपले घोटाले होते थे, वो सारे देश में चर्चा होती थी, जो कहते थे कि कोई उसमें से लॉस ही नहीं हुआ। मुझे मान है। आप बैठे, रमेश जी। सब मुझे खुशी है, मैं बाकी लंबी सारी चीजों की क्या, क्योंकि कोयला बहुत लोगों के दिमाग में पता है क्या घपले हुए थे स्पेक्ट्रम में क्या, तो मैं इन दो चीजों की बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत कुछ और कर सकती थी। कोयलों में 3,30,000 करोड़ 3.3 लाख करोड़ और स्पेक्ट्रम में 1,10,000 करोड़ 20 महीनों में हमारी सरकार ने देश के खजाने में भरा है। भर के दिया, जो ये भर के कहाँ ले जाते थे। सर, अब ये जो पैसों से जो देश का खजाना भरा जा रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस खजाने से इस देश की प्रगति को आगे ले जाने के लिए ये सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। और मैं ऐसे माइलस्टोन बताना चाहूंगी आपके द्वारा सदन को, जो माइलस्टोन सारे आंकड़े हैं, ये मैं नहीं बना सकती, ये नहीं निकाल सकते, लेकिन ये हकीकत है। सब पिछले 20 महीनों में केवल 8,000 किलोमीटर हाईवेज की कंस्ट्रक्शन 2014-15, जो 125% की इंक्रीज है इनके समय से, 125% सिर्फ 20 महीनों में। ये भी कर सकते थे, वो तो आपके बनाए हुए हैं। सर, हम रूरल सड़कों की बात करें तो गांव में सड़कें बनाने का काम जो ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया, 36,000 किलोमीटर रूरल सड़कें जो इनकी सरकार से केवल 20 महीने में साल भर में 11,000 किलोमीटर और हमारी सरकार ने करने का काम किया है। सर, जो रेलवेज के ब्रॉड गेज कन्वर्जन है 65% उसमें इंक्रीज हुई है सर, और हाईएस्ट एवर जो बिजली की जनरेशन, आज गांव के लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारी सड़क बने, हमें घर मिले, हमें बिजली मिले। सब मुझे मान है कि 20 महीनों के अंदर 2015 में हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा बिजली की जनरेशन इस सरकार ने करके दी। ये भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया। सर, हमारी सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल 20 महीनों में हमने दुगनी भी कर दी और कीमतें भी सोलर एनर्जी के उसके टैरिफ्स भी घटा दिए। ये देन इस सरकार की है। सर जी, आप देखिए, कोयले के बारे में मैंने आपको बताया कि कितना पैसा हमने खजाने में डाला। जहां मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कोल इंडिया में 9.8% कोल का उनका इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाईएस्ट एवर ग्रोथ कोल सेक्टर में अभी हुआ है। 63% इंक्रीज इन ब्रॉडबैंड यूजर्स। सर, ये सब
एक ये लेवल्स है जो हमने अनप्रेसिडेंटेड, जो आज से पहले कभी हो नहीं सका था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 महीने में करके दिखाया। अच्छा सर, अब मैं आना चाहूंगी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो उनका ड्रीम विजन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह के परिवार से वो आए, जैसे कि चैलेंजेस उन्होंने फेस करी और जो उन्होंने बीते हुए हालात देखे हैं, आज मुझे मान है कि ये देश अपने सारे रिसोर्सेज और सारी ताकत जे कहीं लगा रहा है, तो वो अंत्योदय उस सोच के साथ कि जो कतार की सबसे पिछली श्रेणी में खड़ा गरीब दबा कुचला पिछला इंसान है, आज ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो उस तक पहुंच सके। जो पहले केवल बातें होती थी, आज जमीनी वो हकीकत बनती हुई दिख रही हैं और शायद यही हकीकत कई लोगों को पच नहीं रही है। सर, गरीबों की उन्नति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मात्र लक्ष्य अगले 5 सालों के लिए, उनमें उनके लक्ष्यों में से सबसे 1 नंबर का लक्ष्य। और मुझे खुशी है कि सरकार बनते सारी जन धन योजना, एक ऐसी योजना जो गरीब कभी बैंक की शक्ल देखने लायक नहीं थे, उनको कोई अंदर घुसने नहीं देता था, बैंक वाले उनके मगर जाके आज हमारे देश के तकरीबन 100% के आसपास लोगों के खाते खोले गए हैं। 21 करोड़ नए परिवारों के खाते खोले गए, 21 करोड़, और इन कोई बंद नहीं हो रहा है, और इनमें 32,000 करोड़ रुपए इन गरीबों में इन खातों में डिपॉजिट किया गया। सर, आज वो गरीबों को ऐसी बीमा सिक्योरिटी देने की योजना जो कोई सरकार सोच सकती थी, लेकिन कई सरकारें ऐसी रहीं जो करीबी देखी नहीं है, सिर्फ गरीबी के नाम पे फोटो खिंचाई हैं। लेकिन ऐसी बीमा योजना 1 रुपया दिन, हाँ देखी होगी ना, तभी तो इधर हूं, 1 रुपया दिन का या 1 रुपया महीने का, ऐसी सस्ती योजना बीमा की शायद मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में नहीं होगा। चाहे आप लीजिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना, केवल 1 रुपया महीना, जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना केवल 1 रुपया दिन का, गरीब से गरीब इंसान 12 रुपए महीना या 330 रुपए महीना जमा करके 2 साल में 2 लाख रुपए का उसको बीमा ये मिल सकता है। ऐसे की बीमा योजना जो सबसे पिछली श्रेणी में खड़े हुआ, चाहे वो भीख मांगता हुआ गरीब हो, कोई हो, वो भी 1 रुपया दिन का या 1 रुपया महीने का जमा करके इस बीमा का फायदा ले सकता है। तो ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसकी पूरा उनको धन्यवाद करती हूँ कि उस गरीब के बारे सोचा जिस गरीब की बातें तो सब करते हैं लेकिन करते किसी के लिए कोई नहीं है। और आज करोड़ों लोगों ने इस बीमा का अपने योजना करा के उनको ये सुरक्षा मिली है कि ऐसे कोई हादसे होने के कारण कम से कम परिवार के लिए कुछ वो पीछे रह जाएगा। सर, हमारे देश में जब हम जाते हैं, आप लोग सब गांव में जाते हैं, गरीबों की सबसे पहली मांग होती है कि हमारे पास घर हो। मुझे मान है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का निशाना बनाया कि 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे जो स्लम ड्वेलर्स हैं और गरीब से गरीब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, और 4.25 लाख घरों के बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हो भी चुके हैं और 4.25 लाख गरीबों को ये घर बनाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 30 महीनों में शुरू कर दिया है। 50 लाख बीपीएल परिवारों को नए सब्सिडाइज्ड गैस कनेक्शन बिल्कुल 0 कॉस्ट पे 50 लाख बीपीएल परिवारों को ये सरकार ने 20 महीनों में दिया है। सब हमारे स्कूलों में अक्सर हम देखते हैं कि खासतौर जहां पे लड़कियों की शिक्षा की बात आती है तो स्कूलों में टॉयलेट्स लैट्रिन नहीं होने के कारण वो स्कूल जाना बंद कर देती हैं। इतनी छोटी छोटी चीजों को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और मुझे मान है कि पिछले 1 साल में 4,18,000 टॉयलेट 2 लाख से ज्यादा स्कूलों में बनाए गए और तकरीबन 14 करोड़ बच्चों का इन टॉयलेट के बनने से उनका फायदा होगा। तो कितनी छोटी सी चीज और कितनी बड़ी आबादी को उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सब युवाओं का रोजगार, ये प्रधानमंत्री जी का एक विजन, जिस देश की आबादी अब 65% युवा होए और ये एक युवा एक ऐसी शक्ति कि जो ये स्किल्ड युवा हो तो ये देश का नेशन का एक एसेट बन सकता है और सेम युवा जो अनस्किल्ड होए तो वो देश की एक लायबिलिटी बन सकती है।
इस चीज को पहचानते हुए मुझे मान है कि प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया जो इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पिछले एक साल में 76 लाख पीपल, 76 हो क्या कहते हैं, 76 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दिया गया केवल एक साल में। और सर, हमारा निशाना है कि 5 करोड़ युवाओं को हमने स्किल करके अपने पैरों पे खड़ा करना है। लेकिन सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन सिर्फ स्किल करके उसको ऐसे बाजार में छोड़ दिया जाए, ऐसे नहीं। उसके बाद एक मुद्रा बैंक स्कीम लगाई गई। इस स्कीम के तहत 10,000 से लेकर 10 लाख तक एक युवा जिसके हाथ में कोई हुनर हो और अपना काम शुरू करना चाहता है, इस मुद्रा बैंक के राही उसको वो बिना कोई कोलैटरल दिए उसको वहां से लोन मिल सकता है। और मुझे मान है कि पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए 2 करोड़ 60 लाख नौजवानों ने इधर से पैसे लेके अपना काम शुरू किया है। और खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी गिनती में इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जिनको इसका भला हुआ है। तो आने वाले दिनों में दिस विल रेवोल्यूशनराइज द स्टेटस ऑफ विमेन इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल सर, मुझे बताइए कि आज से पहले आप ही कोई बता दीजिए कि कौन सी सरकार रही है जिसने हमारे देश के नौजवानों को 20 महीनों के अंदर 2 नए IIT शुरू कर दिए हैं, 6 नए IIM शुरू कर दिए हैं, 1 नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च शुरू किया है, 1 नया NIT 20 महीनों में इनको शुरू कर दिए गए हैं। ये देन है उस सरकार की जो एक फोकस तरीके से नौजवान की चाहे पढ़ाई हो, चाहे उसकी कौशल विकास हो, या उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई हुनर लेके काम शुरू करने के लिए स्किल इंडिया को एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की तरफ काम करने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निशाना देखा है, उस निशाने की तरफ वो काम करने में लगे हुए हैं। सर, जो टॉपिक मुझे लगता है मेरे दिल के सबसे क्लोज है और शायद सारों को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना किसानों की समृद्धि, आज इसमें कोई शक नहीं कि देश भर में किसानों के हालात जो पैदा हुए हैं, ये हालात पिछले 8 महीने, 10 महीने या 20 महीने में पैदा नहीं हुए हैं। ये देन हमें दी गई है जो लोग किसानों के नाम पे किसानों का नारा देके उनकी वोट लेते थे, लेकिन हालातों में सुधार करने के लिए क्या करते थे वो तो साफ दिख रहा है जो आज किसान के हालात है। आज वो किसान जो दिन रात खून पसीना बहा के, दिन रात मेहनत करके ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का पेट भरने का काम करता है, आज वो बेचारे किसान के खुद हालात इतने मजबूर हो गए कि खुद का पेट क्या वो मुश्किल में आया हुआ है। वो आत्महत्या कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये देन है उन सरकारों की जो उनके पास केवल फोटो खिंचाने जाते हैं, उनके हालातों पे सुधार करने के लिए नहीं आते। लेकिन मुझे इस बात का मान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली सरकारों की इतना बातें कम और काम ज्यादा किया। आते साल सबसे पहले पिछले साल कॉम्पनसेशन, क्योंकि आज अक्सर हम देखते हैं कि किसानों के हालात की तकलीफ क्या है, कभी तो मौसम की मार, कभी बरसात ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, जब बरसात नहीं हुआ तो बीमारी हो गई, तरह तरह के ऐसे हालात मौसम के कारण जिस करके किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता था। जहां पहले एक तरीका था कि किसान को जो कॉम्पनसेशन मिलती है वो कुछ ही इतने कम, पिछले कई सदियों से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई थी, और कॉम्पनसेशन भी तब मिलती थी जब कम से कम 50% आपकी फसल खत्म हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते सारी सबसे पहले जो नुकसान होता है पहले 50% पे मिलता था, उसको घटा के 33% नुकसान भी होगा तो आपको कॉम्पनसेशन दी जाएगी, और कॉम्पनसेशन को भी 1.5 गुना बढ़ा दिया। ये काम तो पिछले साल ही कर दिया, लेकिन जो इस साल जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो मैं कहूंगी कि जो फसल बीमा योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आई है, आज मैं मानती हूं कि ये एक बीमा योजना उस मुश्किल में खड़े किसान के लिए एक लाठी का काम करेगी, जहां उसे वो सहारा मिलेगा जब मौसम की मार मिलेगी कि कम से कम मौसम के कारण उसको ये खुदकुशी के हालात नहीं होंगे, लेकिन उसको ये तो ताकत होगी, ही विल एटलीस्ट
हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग कि जब मौसम की मार होए तो मुझे जब मैं बीमा कराऊंगा तो मुझे अपनी फसल का पूरा बीमा मिलेगा। सब पहले किसानों के नाम पे, बीमा के नाम पे बहुत सारी सियासत खेली जाती थी, बहुत पॉलिटिक्स खेला जाता था। कहते तो थे बीमा मिलेगा, लेकिन बीमा का उसका प्रीमियम रेट इतना इंटरेस्ट हाई होता था, 12, 14, 15%, और फिर जब वहां से जब मिलना था कॉम्पनसेशन तो उस पर कैप लगा दिया जाता था कि 11,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, जिसके कारण नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। 65 सालों में हमारे देश के केवल 24% किसानों ने अपनी इंश्योरेंस ली है। लेकिन मुझे मान है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना कीजिए, बीमा देना है तो वैसा बीमा दीजिए जिससे किसानों का कोई फायदा हो सके। पहली बारी इतिहास में जो इनकी सरकार किसान के ऊपर बीमा की प्रीमियम जो 15, 16, 20% तक जाती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बीमा 1.5 से 2 गुना केवल बीमा कर दिया है। केवल 1.5% या 2% किसान को देना पड़ेगा, बाकी सरकार देगी। जो पहले इनकी सरकार ने एक सीमा लगा दी थी, एक कैप लगा दिया था, दीवार बना दी थी कि 11,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, आज वो दीवारें हमने तोड़ के जितना मर्जी का बीमा कराइए वो पूरा बीमा आपको दिया जाएगा। और यही कारण है कि आज ये नई फसल बीमा योजना के कारण नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब, इट इज नॉट मुश्किल, यू विल हैव योर टर्न, उनको सहारा मिलेगा। और हमारी सरकार का निशाना कि जो केवल 23% किसानों ने आज तक बीमा कराया था, कम से कम हम हर एक किसान का बीमा आने वाले साल 1.5 साल के अंदर करवा दें। सर, ये तो नई स्कीम है, लेकिन आप सब जानते हैं कि किसान की जो जान होती है, उसकी फसल की जान होती है सिंचाई, उसको पानी की। किसान को हर खेत को पानी मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, तो पानी का स्तर कम होने के कारण हमको एक एक पानी के बूंद से ज्यादा पैदावार मिले, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हर एक किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए। 1,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल इस निशाने पे रखे हैं कि किसान को टारगेटेड तरीके से उनके खेतों में पानी पहुंचाया जाए, स्प्रिंकलर सिस्टम देके, ड्रिप इरिगेशन देके उनको पर ड्रॉप मोर क्रॉप की, आज हमारे देश के किसान इस तरफ चले, उस तरफ उनको इनकरेज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सर, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी जो ये किसान देख रेख करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि किसानों का जो सॉइल है, जो उनकी मिट्टी है, वो लगातार ओवर यूज के कारण उसमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। मैं मान करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पहचानते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड तकरीबन 90 लाख किसानों को इशू कराए हैं, और टारगेट है कि 2017 के मार्च तक, अगले साल के मार्च तक हर एक किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड लग जाए। जैसे इंसान को अपनी सेहत के बारे पता है, उसको अपनी मिट्टी की सेहत के बारे भी पता लग जाए कि इसमें मैं क्या अपने पैसे कहाँ बचा सकता हूँ, दवाई कैसे कम करूँ, उससे अपने जमीन की मिट्टी की पैदावार बढ़ाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। सर, 24/7 एक किसान चैनल बिल्कुल किसानों के लिए डेडिकेट किया गया, जहां उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तौर तरीके, हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए, जो बिल्कुल रिमोट एरियाज में भी जो किसान हैं उनको मौसम कैसे होने वाला है, कब वो बिजाई करे, कब सिंचाई करे, ये सारी जानकारी उनको मिल सकती है। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बढ़िया, आप मानेंगे कि नया कदम जो उठाया। मुझे एक ऐसे स्टेट से आती हूँ जहां हमारे पास भी किसान लगातार आके कहते थे कि इस टाइम यूरिया समय से न मिलने के कारण ऐसे झगड़े होते थे, मार कुटाई होती थी, क्योंकि यूरिया की घाट के कारण फसल की बिजाई में मुश्किल आती थी, और फसलों के लिए किसान को जब चाहिए था वो यूरिया के मगर लड़ते थे, क्योंकि यूरिया की शॉर्टेज होती थी। इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए, जो मिसयूज होता था उसे दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतना विजनरी और रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया कि यूरिया की नीम कोटिंग शुरू कर दी। और आपको खुशी होगी जान के कि इस साल किसी स्टेट से कोई दिक्कत नहीं आई, किसी का फोन नहीं आया, किसी का पत्र नहीं आया कि हमें यूरिया नहीं मिली, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया पूरा किसानों तक पहुंच सका। सब कई सारी ये चीजों के कारण जहां हमारे देश में दूध का पैदावार बढ़ा है, फिशरीज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं आज भी मानती हूं कि अगर किसानों को असली सही तरीके में उनको समृद्ध करना है, उनको आगे बढ़ना है, तो केवल खेती बाड़ी में नहीं
लेकिन फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण की तरफ उनको लेके जाना पड़ेगा। आज जो किसान अपने खेत में उगाता है, उस फसल को वो वैल्यू ऐड करके अपनी आमदन में कैसे बढ़ोतरी कर सके, उसको उस तरफ ले जाने की वो एम्फोसिस देने की जोर है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फार्मर को और इंडस्ट्री को लिंक करती है, एक ब्रिज का काम करती है। और इसमें कोई शक नहीं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितना प्रोग्रेस करती है, उतना किसान की फसलों की डिमांड बढ़ती है। जब फसलों की डिमांड बढ़ेगी, जब इंडस्ट्री किसान, आज तो किसान मंडी में भागता है कि कोई खरीद ले, सही दाम दे दे, अब ये इंडस्ट्री किसान के मगर भागेगी, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री किसान के फसल के साथ चलेगी। तो जब उसको सही जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको सही कीमतें मिलेंगी। कीमतों के साथ साथ इस इंडस्ट्री को किसान के साथ पार्टनर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फसल उसको ऐसी मिले जिससे उसकी इंडस्ट्री में मुनाफा हो। वो किसान को वो टेक्नोलॉजी, वो नो हाउ, वो सीड, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा जो आज किसान अपने बलबूते पे नहीं कर सकता। सो मैं समझती हूँ कि इस चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचानते हुए मुझे खुशी है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो पहले एग्रीकल्चर का एक हिस्सा होती थी, पूरा फोकस देने के लिए इस फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को अलग किया। और यही कारण है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जिससे किसानों को जमीन में फायदा हो सके, कि जो स्कीम्स मेगा फूड पार्क या कोल्ड चेन जैसी स्कीम्स है जिससे किसानों की फसल की बर्बादी रोक सकते हैं, जिसमें किसान अपने फसलों की स्टोरेज करके जब सही दाम मिले उस समय बेच सकते हैं। जो बाजार में बेचने के बाद जो बच जाता है, जिसकी खरीद नहीं होती, उसको प्रोसेसिंग के लिए ले जाके उधर बेच के उससे कीमत मिल सकती है। तो ये सारी चीजों को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मेगा फूड पार्क स्कीम, जो मैं मानती हूं कि बहुत अच्छी सोच थी जो इनकी सरकार ने सोची, इनके मंत्री ने सोची, लेकिन अकेले सोचने से तो किसी का काम होता नहीं, पेट भरता नहीं। सोच के हकीकत जमीन में लाना बहुत जरूरी होता है। और दुख होता है कि ये स्कीम जिसको 24 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, तो 42 मेगा फूड पार्क में से 6 साल में केवल 2 शुरू हुए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 20 महीने में हमने 5 और शुरू कर दिए हैं। ये पहले भी हो सकते थे। आज 7 मेगा फूड पार्क 7 अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, जिसके आने वाले दिनों में सीधा सीधा फायदा देश के किसानों को होगा। मुझे इस चीज का भी मान है कि कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, आज जरूरत है कि जिस देश में लगातार हर साल लोगों का जिनका पेट भरना, आबादी बढ़ रही है, और बढ़ती हुई आबादी अगले 15-20 सालों में जो आज हमारे फूड की कंजम्पशन है, ये अगले 15 सालों में 30 गुना और बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। और एक तरफ फूड की कंजम्पशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे देश में वेस्टेजेस भी बहुत होते हैं। तो ये वेस्टेजेस को घटा के इस खाने को आबादी के लिए अवेलेबल करने के लिए कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर होए, ताकि खेत से लेकर थाली तक एक सीमलेस तरीके से बिना जीरो वेस्टेज के साथ लोगों तक सही दाम में न्यूट्रिशियस खाना पहुंच सके। मैडम, मुझे मान है कि कोल्ड स्टोरेज की, कोल्ड चेन्स की क्रिएशन जो इनकी सरकार ने 4 साल में 37 किए थे, हमने 20 महीने में 37 और खड़े कर दिए हैं। और तकरीबन 1.2 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का, इंस्टेंट क्विक फ्रीज 35 मेट्रिक टन का, मिल्क प्रोसेसिंग के लिए 12 लाख लीटर का, और 206 रीफर वैन, ये सारी चीजें हमने अपने लोगों को और किसानों को इनको अरेंज कर दी हैं, जिससे किसानों का भला हो सके। सो जहां पे हर तरफ से इस सरकार का निशाना रहा है कि चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, खेती हो, या फिर दुनिया को हमें देखने का नजरिया हो, 20 महीनों में इस चीजों को कोई नहीं नकार सकता कि आज दुनिया ने हमारी तरफ नजरें बदली हैं। जो देखता नहीं था, आज सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। लेकिन मैडम, मैं ये भी कई चीजें, और क्योंकि वैसे मुझे लगता नहीं कि शायद बोलने की जरूरत है, लेकिन काम ही इतना किया है कि बोलने में आनंद आ रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि नेशनल हाईवे तो मैंने बता दिया कि इनके समय में जहां 3500 किलोमीटर होते थे, हमने 10,000 किलोमीटर 20 महीने में कर दिए। जो रूरल रोड्स होती थी उसमें मैंने आपको बताया 11,000 किलोमीटर, इनसे अधिक हमने केवल 20 महीनों में कर दिया। सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैंने आपको बताया हमने दुगनी कर दी। एलईडी एफिशिएंसी मैडम, जिस बत्ती से एफिशिएंट और हमारा बिजली और एफिशिएंट हो सकती है,
जो इनके टाइम में 0.1% होती थी, वो उसको हमने 12% तक ले गए हैं। तो इस तरह की आप देखिए कि चाहे कोल सप्लाई हो, चाहे ग्रिड एफिशिएंसी हो, ब्रॉडबैंड यूजर्स हो, ये हर एक स्तर पे इंडिया ने जैसे काम किया है पिछले 20 महीनों में, उसकी बराबरी ये कर ही नहीं सकते। मैडम, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 20 महीनों में, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि शायद इतिहास में पहली बार एक सरकार बनी है, नई सरकार, जिसके 6 सत्र पार्लियामेंट सेशंस हुए हैं और 6 में से 3 टोटल वॉशआउट्स हुए हैं, और किन्होंने किए हैं ये मेरे से भला आप जानते हैं। तो कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं जिन्होंने इस देश की आर्थिक विकास को रोकने का ठान लिया है, और यही इनके ये जो they are responsible for stalling the economic growth and development of this country is proved by the fact कि आज राज्यसभा में 55 से ज्यादा बिल आज पेंडिंग हैं। और क्यों पेंडिंग है? क्योंकि हाउस चलता नहीं है। कौन चलने नहीं देता, ये आप भी जानती हैं और देश भी जानता है। मैडम, ये भी सब जानते हैं कि आज कोई लोग जो देश में, हमारे देश में काफी राज्यों में नौजवानों में अनरेस्ट है, आज लोग चाहते हैं कि हमें नौकरियां जल्दी मिलें, और इसका कारण क्या है कि जो नौकरियां मिलने का काम, जो job generated, that generation that can be kick-started by certain policies, for example the GST, ऐसी पॉलिसी जिससे जॉब क्रिएशन भी होगा, देश की डेवलपमेंट इकोनॉमिक एजेंडा आगे बढ़ेगा। आज वो लोग उस जीएसटी को अंदर लाने नहीं देते हैं, हर तरह की डिस्ट्रप्टिव टैक्टिक्स यूज करते हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जब जीएसटी आ जाएगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के तो दुनिया भर में इनकी वाहवाह होगी, देश के लोग भी वाहवाह करेंगे, तो इनको रात को नींद कैसे आएगी? तो यही कारण है कि ये हर एक तरीके की, जिस भी तरह की टैक्टिक्स यूज करेंगे। आज कहते हैं इंटॉलरेंस डिस्कस किया जाए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटीज में डिस्कस किया जाए, लेकिन जीएसटी तो डिस्कस करने नहीं देना है। ये सब करने के लिए इनको बिठा लीजिए, सैकड़ों घंटे इनसे बात करवा लीजिए, क्योंकि इन डिस्कशन से देश का प्रगति नहीं होती। इंटॉलरेंस डिस्कस करके, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स डिस्कस करके तो देश की रफ्तार आगे नहीं बढ़ती। जीएसटी को पास करके देश की रफ्तार आगे बढ़ती है। तो ये इनसे बर्दाश्त होता नहीं। मैडम, आज इन लोगों का एक निशाना है, ये इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी अर्जुन की तरह, उनका एक ही लक्ष्य है, उनका ध्यान एक है, इस देश की प्रगति, उधर इन लोगों का ध्यान तो एक ही लक्ष्य है कि मोदी को फेल कैसे करें। तो ये नहीं समझ रहे कि इनकी डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स मोदी को नहीं फेल कर रही, ये देश का नुकसान कर रही है। इनको ये बात नहीं समझ आ रही है। मैं आखिर में मैडम इतना ही कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो अर्जुन की तरह लगे रहेंगे, लेकिन हमारे दसम पिता ने भी, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे गुरु हैं, और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की जनता को भी आश्वासन देना चाहती हूं कि गुरु साहब ने फरमाया था, देश वर मोहे एहे शुभ कर्मन से कभू ना डरू और से जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करूं। मैडम, तो ये लगे रहे, ये लड़ाई है देश की प्रगति और देश के विकास की, ये रोकने में लगे रहें और हम निश्चय कर अपनी जीत करके ये प्रगति करके दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई पे। धन्यवाद।